बेटा ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द आल्केन, और आल्केन में ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इट इज़ फ्रॉम द कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ द आल्केन। और कन्फॉर्मेशनल कॉन्फ़िगरेशन जानते हो क्या है? फ्री रोटेशन इज़ पॉसिबल। अब देखो ये फ्री रोटेशन इज़ पॉसिबल में हमसे पूछा है मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन ऑफ द एन ब्यूटेन। बट आप जानते हो एन ब्यूटेन कैसे लिखते हैं? ये रहा एन ब्यूटेन, द वे वी आर राइटिंग एन ब्यूटेन इज CH3 CH2 CH2 एंड CH3, ये है एन ब्यूटेन। बेटा अपनी आँख यहाँ पर लगा लो और ये वाले कार्बन को एज ए फ्रंट कार्बन समझो, तो दिस कार्बन शुड बी रियर। बेटा फ्रंट कार्बन को ऐसे डॉट लगाते हैं एंड रियर कार्बन को ऐसे सर्कल बनाते हैं। फ्रंट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल है, तो मैं कर दूँ बेटा यहाँ पर एक मिथाइल कर दिया और 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया। बेटा ये रियर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और मिथाइल है, तो व्हाट आई विल डू, एक मिथाइल यहाँ लगा दिया, 2 हाइड्रोजन। बेटा ये देखो ये मिथाइल ग्रुप एक दूसरे से बहुत दूर है, अपोजिट टू ईच अदर, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज ए स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशंस, और इट इज़ कॉल्ड एज ए स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। अगर ये मिथाइल एक के पीछे एक आ जाए, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ दिख रहा, बेटा इट इज़ कॉल्ड एज ए एक्लिप्स्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज़ कॉल्ड एज ए स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन। एंड एक्लिप्स और स्टैगर्ड में सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या है बेटा? स्टैगर्ड। तो आंसर शुड बी व्हाट? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। नाउ सी हियर अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द साइक्लोहेक्सेन। Cyclohexane with bromine, bromocyclohexane, in presence of ether react with the magnesium gives rise to X. But X on hydrolysis in acidic medium gives the Y. What is the Y in the reactions? But this is called as a RX, called as a alkyl halide. See beta here, this is a alkyl halide. It react with magnesium in presence of dry ether. बट whenever it react with the magnesium in presence of dry ether, ये जनरल रिएक्शंस है कि whenever alkyl halide react with magnesium it gives rise to Grignard reagent, that is a R, then Mg and then X. But this is called as a Grignard reagent, and in this Grignard reagent R means this is a part of this R is always behave as a nucleophile, means आपको ये जो R दिख रहा है बेटा, ये वाला R, ये हमेशा निकलेगा एज ए नेगेटिवली चार्ज। एंड नाउ इट रिएक्ट विथ वॉट बेटा? वाटर। और जानते हो बेटा वाटर को हम ऐसे लिख सकते हैं, एसिडिक मीडियम, इंस्टेड ऑफ राइटिंग HCl आई राइट H+। बेटा दिस वन cyclohexyl part, but it will have a negative charge, and this negative charge will take out the H+ from the water, and we are going to get H is here. And what is the name of this compound beta? The name of this compound is called as a cyclohexane. So this is a reaction based on what? RX alkyl halide plus Mg, that is magnesium, in presence of dry ether, but it gives rise to Gr, Grignard reagent. Grignard reagent में this R is there ना, it will always be coming out in the form of a R negative, which behave as a nucleophile. This nucleophile will take out the acidic hydrogen because it acts as a base, and it will take out the acidic hydrogen, and we are getting the final product as a alkane, and the name of this alkane is a cyclohexane. Once again see here, but this is a reaction based on this part. See here, RX called as a alkyl halide, but it react with the magnesium in presence of the ether, but it gives rise to Grignard reagent, that is R MgX. This is called as a Grignard reagent, but in this Grignard reagent this R will always get a negative, magnesium is a metal, will get the positive. This R negative act as a nucleophile as well as it act as a
base. Now these R negative, when it react with the water molecule, but these R negative will take out the H positive, and hence it will form here as a RH. And what is the name of this RH, beta? This RH is be called as a alkane. So based on these general reaction, that is a question came on the alkane. Once you see here, beta. Chalo, next question we'll see now. Now beta, these are the another question based on what? Question based on alkene and alkyne. Based on alkene and alkyne. See, this is a question they gave here. This is a compound is obtained from ozonolysis of which of the following cyclic compound. बेटा ऐसे जब भी क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले क्या करो, मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, सीखो. ये कंपाउंड में डबल बॉन्ड मुझे यहाँ दिख रहा है, बेटा इस डबल बॉन्ड को यहाँ से तोड़ो, और इसमें भी डबल बॉन्ड होता है. एंड आई रोट CHO, बट एक्चुअली ये होता कैसे बेटा, ये होता कैसे है, C डबल बॉन्ड OH. आपको जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड दिखता है ना, उसको तोड़ते जाओ. बेटा ये भी टूट गया और ये भी टूट गया. अब एक कार्बन को नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5. कार्बन 1 और 5 को जोड़ो, सो 5 मेंबर रिंग. बेटा ये हो गया 5 मेंबर रिंग. 1 2 3 4 5. बेटा फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, देखो थर्ड कार्बन पे मीथाइल ग्रुप आ गया, ये वाले थर्ड कार्बन पे मीथाइल ग्रुप आ गया. फिफ्थ कार्बन पे भी मीथाइल ग्रुप आ गया. बेटा फिफ्थ कार्बन पे भी मीथाइल ग्रुप आ गया. देन यहाँ से 1 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5. कार्बन एटम 1 2 3 4 एंड 5, दो मीथाइल ग्रुप तो आ गए. I will do here बेटा 1 2 3 4 5. मिथाइल ग्रुप इज ऑन 1 and 2, पॉसिबल नहीं है. I will do from here 1 2 3 4 5. बेटा मिथाइल ग्रुप देखिए यहाँ पर 1 and 4 पे. अगर मैं नंबरिंग ऐसे करूँ इंस्टेड ऑफ दिस वे, अगर ये नंबरिंग को मैं ऐसे करूँ 1 2 3 4 5, तो ये पॉसिबल लग रहा 1 and 3 पे मिथाइल है. यहाँ पे देखिए बेटा 1 2 पॉसिबल ही नहीं है, और ये छोड़ ही दो. मतलब ओवरऑल आंसर यहाँ पर लग रहा है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड आ गया है. गॉट द पॉइंट बेटा. और यहाँ डबल बॉन्ड लाने के लिए व्हाट वी कैन डू हियर, बेटा 1 and 5 है ना, बट मिथाइल ग्रुप इज ऑन द थर्ड कार्बन एटम एंड मिथाइल ग्रुप इज ऑन द फिफ्थ कार्बन एटम. मैंने 3 और 5 पे ले लिया है, राइट. और यहाँ पर मुझे आ रहा 1 and 3 पे आ रहा है. बट इनका डिफरेंस देखिए ना, कहाँ पर है, 3 पे डिफरेंस है. यहाँ भी देखो बेटा डिफरेंस 1 2 3 पे है. अभी मुझे डबल बॉन्ड बनाना है. तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए व्हाट आई शुड डू, आई शुड टेक आउट द वाटर मॉलिक्यूल और आई शुड टेक आउट द हाइड्रोजन. अगर मैं हाइड्रोजन ले जाऊँ यहाँ से, कहाँ से बेटा, कार्बन एटम 1 और कार्बन एटम 4 से अगर मैं हाइड्रोजन को निकाल दूँ, तो डेफिनेटली आई विल गेट अ डबल बॉन्ड ऑन दिस पोजीशंस, एंड बेस्ड ऑन दैट बेटा आवर आंसर शुड कम हियर एज ए फोर्थ वन. बिकॉज पॉसिबल आंसर यहाँ पर है बेटा मेरे पास. यहाँ देखिए मिथाइल ग्रुप इज ऑन 1 and 2 पे आ रहे हैं बेटा, यहाँ मिथाइल ग्रुप इज 1 and 3 पे आ रहे हैं, यहाँ मिथाइल 1 and 2 पे आ रहे हैं. और जब मैं इन दोनों को 1 and 5 को जोड़ूँ, तो मुझे मिथाइल ग्रुप कहाँ पर आ रहा है बेटा, 3 and 5. मैं नंबरिंग यहाँ से किया,
इफ आई डू द नंबरिंग फ्रॉम अदर साइड, व्हाट 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो बेटा मेरे मिथाइल ग्रुप कहाँ पे आ रही है 1 and 3, और यहाँ भी कहाँ पर आ रही है 1 and 3। तो पॉसिबल आंसर क्या है बेटा, मिथाइल ग्रुप 1 and 3 पे हो और आपकी जो डबल बॉन्ड हो और 1 और 5 के बीच में यहाँ से यहाँ पे आपको एक डबल बॉन्ड लग जाए। तो ये पॉसिबल कब होगा, इफ़ यू टेक आउट द हाइड्रोजन फ्रॉम हियर इट विल मेक द डबल बॉन्ड एंड हेंस। नहीं तो भी अब डबल बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं बेटा, क्योंकि आपने यहाँ से बॉन्ड तोड़े ना, तो ये कार्बन और ये कार्बन जब जुड़ जाएगा 1 और 5 जब जुड़ जाएगा तो ऑब्वियसली आपको डबल बॉन्ड ही आएगा। अगर आपको इसको ओजोनोलिसिस करा के देखना है कि रियली वो प्रोडक्ट आता भी है या नहीं, तो देखो बेटा मैं आपको ओजोनोलिसिस करा के दिखाता हूँ। इसकी ओजोनोलिसिस कराइए इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अब देखो डबल बॉन्ड तोड़ो और ओ को जोड़ो, देखो क्या आता है बेटा, C बॉन्डेड विद CH3 डबल बॉन्ड O पहला। अब ये कार्बन कितनी कार्बन से जुड़ा CH2, देन किससे जुड़ा बेटा CH बॉन्डेड विथ मिथाइल ग्रुप, अगेन इट इज बॉन्डेड विथ व्हाट CH2, बट अगेन इट इज बॉन्डेड विथ व्हाट दिस वन C डबल बॉन्ड OH। देखो बेटा ये वाला कंपाउंड और आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ कंपाउंड सेम ही नहीं है। C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, CH2 CH2 CH CH3 CH CH3, देन CH2 C डबल बॉन्ड और CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। मतलब ये डबल बॉन्ड कब आएगा, जब 1 and 5 जब जुड़ जाएगा बेटा, ग्रीन कलर वाला 1 and 5 जब जुड़ जाएगा तो ऑब्वियसली जब वो ज्वाइन करेंगे तो उन दोनों कार्बन के बीच में क्या आएगा, यू आर गेटिंग द डबल बॉन्ड इन बिटवीन 1 and 5। और यहाँ भी देखो बेटा 1 और 5 में डबल बॉन्ड आ गया, हेंस द आंसर शुड कम एज ए व्हाट, सेकंड ऑप्शन इज बी। बेटा ये है ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। बेटा दिस इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द ओजोनोलिसिस पार्ट ऑफ द अल्कीन। बेटा ये अल्कीन की ओजोनोलिसिस का दूसरा क्वेश्चन दिया है। अमॉन्ग दिस अल्कीन विच अल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स राइज टू दिस टू प्रोडक्ट। बेटा यहाँ भी ऐसे ही करना है, पहले एक कंपाउंड को खोल के डबल बॉन्ड बना लो पहले। देखो बेटा ये हो गया डबल बॉन्ड, और ये कंपाउंड का डबल बॉन्ड वो भी बना लो उल्टी यहाँ से, C डबल बॉन्ड हो CH3 CH3। सर जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है वहाँ से बॉन्ड को तोड़ो और C से C को जोड़ो बेटा। अगर मैं C से C को जोड़ूंगा तो देखो क्या आएगा, फर्स्ट वन CH3, देन CH2, देन CH। बेटा ये C डबल बॉन्ड हो, ये C डबल बॉन्ड हो, C से C जुड़ रहा डबल बॉन्ड के साथ, और ये C के पास क्या है बेटा, एक मिथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है। ऐसा कंपाउंड कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? यस सर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो बेटा CH3 CH2 CH, CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड C CH3 CH3, डबल बॉन्ड C CH3 CH3, hence option A is the alkene which on ozonolysis gives rise to these two product. One is a propanaldehyde, another one is the acetone. This is a question. बेटा ये alkynes है YNE, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है YNE, और इसकी ओजोनोलिसिस करा लिए ईथर मीडियम में फॉलोड बाय जिंक एंड वाटर। बेटा जब ओजोनोलिसिस ट्रिपल बॉन्ड की कराते हैं ना तो दो बॉन्ड को तोड़ना, ओनली टू बॉन्ड्स को तोड़ के O को जोड़ो। सो व्हाट आई विल गेट CH3C, CH3C, ये टूट गया डबल बॉन्ड O। अब देखो एक बॉन्ड बच के है ना, तो ये C से ये C जुड़ गया, फिर यहाँ पर देखो बेटा डबल बॉन्ड हो, बाकी क्या बचे हैं CH2 CH3। ऐसा कोई प्रोडक्ट आपको यहाँ दिख रहा है? यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। मतलब आपने ENE की भी ओजोनोलिसिस करा लिए और YNE की भी करा लिए एंड वी गॉट द आंसर ए। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से है। अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड दो दो दिए गए और देख सकते हो यहाँ पर मैंने ओजोनोलिसिस करानी है जिंक
फॉलोड बाय वाटर। बट आई एम गेटिंग द ए बी सी। पर सवाल में वो नहीं पूछा, सवाल में देखो क्या पूछा है, विच वन इज नॉट द ए बी सी। तो विच वन इज नॉट द ए बी सी मतलब मुझे एक काम करना पड़ेगा, अगर मैं डबल बॉन्ड यहाँ से तोड़ के ओ को जोड़ूंगा तो देखो क्या आएगा। पहले तो आएगा बेटा, आप देखो CH3 बॉन्डेड विथ C, उसके साथ डबल बॉन्ड O और बाजू में CH3। भाई यहाँ पर ये है तो ये आंसर तो नहीं होगा बेटा, ये डबल बॉन्ड O आपको दिख रहा है राइट। अगर मैं यहाँ से भी तोड़ के ऑक्सीजन जोड़ दूँ, देखो CH2 डबल बॉन्ड O दिखने वाला है, CH2 डबल बॉन्ड O। बेटा ये रहा CH2 डबल बॉन्ड O या CH2O, ये भी प्रोडक्ट है। बट इज आस्किंग विच इज़ नॉट द ABC, मतलब ये A हो सकता, ये B हो सकता। और दूसरा जो बचा हुआ है, व्हाट वी कैन डू, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O। बेटा ये बीच का दिख रहा, बीच का आपको ये वाला, ये देखो ये C, बेटा ये रहा C डबल बॉन्ड O, देन CH3 CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O मतलब अल्डिहाइड ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी आ गया बेटा। मतलब ये एक ऐसा प्रोडक्ट है वो आपको कहीं भी नहीं मिला। सो विच इज़ नॉट द ABC बेटा, ऑप्शन डी इज़ नॉट द ABC। आया समझ में? देख लो जहाँ डबल बॉन्ड है ब्रेक करो और ऑक्सीजन को जोड़ो, जितने प्रोडक्ट आते हैं बना लो। बेटा ये प्रोडक्ट A में है, ये प्रोडक्ट B में है, ये प्रोडक्ट C में है, एंड दिस aldehyde we are not getting anywhere, so answer should be what, which is not the ABC, option D is the correct answer where it is not the ABC। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बेटा ये रहा क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। C3H4 on ozonolysis followed by zinc dust and water, it gives CO2 and HCHO। बेटा ये C3H4 क्या हो सकता है, आप यहाँ से बना सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे आपके पास CO2 है तो ऑब्वियसली C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड होगा, और आपके पास HCHO है बेटा, मतलब ये HC डबल बॉन्ड O और ये H होगा। और आपके पास कार्बन कितने दिए बेटा, 3 है, और वहाँ पे कार्बन आपको कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो व्हाट आई विल डू, 3 कार्बन 1 2 3, हाइड्रोजन 4 है बेटा, 1 2 3 4। आपको इसकी ओजोनलिसिस करानी है, डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन को जोड़ो बेटा, ये डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन को जोड़ो। तो क्या मुझे ये वाला HC डबल बॉन्ड OH, HC डबल बॉन्ड OH 2 टाइम्स नहीं मिल रहा, और ये देखो C डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड O 1 टाइम नहीं मिल रहा। मतलब मेरा C3H4 क्या होगा बेटा, ये होगा, दिस इज माई C3H4, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 यहाँ, तो ये हो गया बेटा मेरा अल्कीन राइट। चलो मैं इस अल्कीन की हेल्प से अभी मैं आपको ये नीचे की रिएक्शन करा रहा हूँ राइट। तो बेटा ये मेरा अल्कीन है, मैं वापस लिख रहा हूँ अल्कीन को, देखो कैसे लिख रहा हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड डबल बॉन्ड कार्बन, ये अल्कीन है। 2 इक्विवेलेंट ऑफ HCl, बेटा आप जानते हो एडिशन ऑफ HCl विल फॉलो द मार्कोनिकॉफ रूल। अब मार्कोनिकॉफ रूल में भी क्या होता है, देखिए यहाँ पर बेटा एक बॉन्ड को अगर तोड़ दूँ तो H यहाँ जुड़ेगा तो Cl यहाँ जुड़ेगा। डिड यू रिमेंबर, याद है आपको पढ़ाया था, अगर ये बॉन्ड को तोड़ो
तो बेटा H will attack here and Cl will attack here. What I will get? HCH डबल बॉन्ड C. देखो एक H यहाँ जुड़ गया, एक Cl यहाँ जुड़ गया. बेटा और एक मोल आप HCl डालो, वन मोर मोल यू हैव टू ऐड. मैं यहाँ से भी निकाल दूंगा बेटा. एक H यहाँ पर जुड़ेगा और एक Cl यहाँ जुड़ेगा. सर H यहाँ क्यों जुड़ा, Cl यहाँ क्यों जुड़ा? डिड यू रिमेंबर मार्कोनिकॉफ रूल बेटा? मार्कोनिकॉफ रूल में H प्लस विल अटैक ऑन दैट कार्बन विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. आप बोलेंगे सर कैसे मालूम पड़ता? देखो बेटा इस डबल बॉन्डेड कार्बन में इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है या नहीं है, तो इस कार्बन से H जुड़ेगा, इस कार्बन से Cl जुड़ेगा और ये डबल बॉन्ड जो था ब्रेक हो जाएगा. बेटा आई गॉट हियर एज ए दिस इज माई कंपाउंड ए, आई गॉट इट. अब सेकेंड स्टेप क्या था देखो वहाँ पे. व्हाट इज सेकेंड स्टेप? अल्कोहलिक KOH. बेटा आप जानते हो अल्कोहलिक KOH का काम क्या है? अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन होता है. बेटा इट विल टेक आउट हाइड्रोजन एंड हैलोजन. अगर हाइड्रोजन ऊपर से गया तो हैलोजन नीचे से जाएगा, एंटी एलिमिनेशन. मतलब यहाँ पर क्या आएगा देखो ध्यान से, CH3 then CCl and then CH2. I got the double bond on this side. ठीक है. सेकेंड स्टेप में क्या होगा? NaNH2 डालना है. बेटा NaNH2 ऑल्सो एलिमिनेशन ही निकालता है. मतलब NaNH2 में NH2 माइनस विल टेक आउट द हाइड्रोजन एंड द क्लोरीन. अब देखो हाइड्रोजन नीचे से गया तो क्लोरीन ऊपर से गया. अगेन आई विल गेट अ डबल बॉन्ड सेम वे. सॉरी, बेटा ये H यहाँ है, डबल बॉन्ड C H2. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप बेटा? चेक इट यार, हम लोग स्टार्ट यहीं से किए थे देखो और वहीं पे आ गए. नाउ एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ Hg+2 आयन. एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ Hg+2 आयन. बेटा ये Hg+2 है, वाटर ऐड कर रहे हो, वाटर के 2 पार्ट होंगे, H प्लस एंड OH माइनस, एंड इट ऑल्सो फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल. तो अगर मैं यहाँ पर H को जोड़ूँ तो यहाँ पर OH आएगा, तो आई विल गेट CH3 और बेटा यहाँ पर आ गया एज ए OH डबल बॉन्ड CH2. बेटा ये कंपाउंड में देखो डबल बॉन्ड है मतलब ENE है, अल्कोहल का OH है, कॉल्ड एज ए व्हाट? इनॉल. और जब भी आपको इनॉल आ जाए ना बेटा तो आपको इनॉल की क्या करानी है? टाउटोमेरिज्म करानी है. टाउटोमेरिज्म करानी है बेटा. टाउटोमेरिज्म जब कराओगे तो क्या होगा बेटा? ये वाला H इस कार्बन पे आएगा, इज इट क्लियर? और डबल बॉन्ड ये ऑक्सीजन पे जाएगा. H comes to here, डबल बॉन्ड goes to here. अब देखो ये कैसे दिखेगा बेटा? CH3 then C डबल बॉन्ड goes to O और ये H C के पास में आ गया, CH2 become CH3. बेटा इसका नाम है एसीटोन. दिस इज कॉल्ड एज ए व्हाट? एसीटोन. बेटा इट इज ऑल्सो बी कॉल्ड एज ए 2-प्रोपैनोन. और हमसे पूछा भी क्वेश्चन में वही है ना कि व्हाट इज ए C. बेटा ये जो प्रोडक्ट है मेरा, दिस इज ए प्रोडक्ट C, नेम इज एसीटोन और 2-प्रोपैनोन. और देखो कहीं ना कहीं बोर्ड पे मिल रहा होगा. यस सर, आंसर इज व्हाट बेटा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, वेयर वी गॉट द प्रोपैनोन. इज इट क्लियर? देखो बेटा स्टेप वाइज देखते जाइए. सबसे पहले मैंने स्टार्ट यहाँ से किया बिकॉज C3H4 है तो CO2 और 2 अल्डिहाइड दिया है. बेटा 2 अल्डिहाइड आ रहे हैं तो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ आएंगे मैंने आपको बता दिया. देखो डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ आएंगे. अब HCl जब डालोगे, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करोगे तो जानते हो
H will attaches to that double bonded carbon which has more number of hydrogen. तो इस कार्बन पे H जुड़ गया, इस पे Cl जुड़ गया. देखो बेटा, यहाँ H जुड़ गया, यहाँ Cl. फिर 1 more mole of HCl डालो, तो बेटा यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था यहाँ H जुड़ेगा, यहाँ Cl. देखो ये Cl यहाँ, H यहाँ. अब अल्कोहलिक KOH में एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन, अगर हाइड्रोजन नीचे से गया तो हाइड्रोजन ऊपर से जाएगा, तो आई गॉट डबल बॉन्ड. फिर अल्कोहलिक KOH ने जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकाला, वैसे ही NaNH2 भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही निकालता है. तो इट विल टेक आउट हाइड्रोजन एंड देन हाइड्रोजन, देन वी गॉट द डबल बॉन्ड. सेम जो प्रोडक्ट से शुरू किए थे वहीं पे आ गए. अब आपको एडिशन ऑफ वाटर करानी है इन प्रेजेंस ऑफ Hg+2. तो यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ Hg+2, इट आल्सो फॉलोज द मार्कोनिकॉफ रूल. मतलब वाटर का पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा हो. तो हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ गया, OH बगल में जुड़ गया. आपको देखो क्या आ गया बेटा, आपको आ गया इनॉल. और इनॉल की टॉटोमरिज्म कैसी होती है, डबल बॉन्ड गोज टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन पे गया और H उस कार्बन पे वापस आ गया, एंड वी गॉट द फाइनल प्रोडक्ट C कॉल्ड एज एसीटोन और 2-प्रोपैनोन. इज इट क्लियर? ठीक है, लिख लो बेटा इसे. बेटा अगर आपको लग रहा होगा यहाँ पे अल्कोहलिक KOH से आपने HCl निकाले, तो फिर NaNH2 से HCl क्यों निकाले? देखो, when we are using the alcoholic KOH, we are taking out the halogen from the sp3 hybridized carbon and hydrogen also from बेटा sp3 hybridized carbon. लेकिन अभी जो मुझे HCl निकालनी है बेटा, ये वाला H देखो sp3 पे चल जाएगा, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन sp2 पे है, और sp2 कार्बन इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है, और वहाँ से हाइड्रोजन निकालना पॉसिबल नहीं है. तो आप जो यूज़ करने वाले हो डी हाइड्रो हैलोजनेटिंग एजेंट, बेटा वो पहले के कंपेयर में स्ट्रॉन्ग हो. अल्कोहलिक KOH के कंपेयर में स्ट्रॉन्ग कौन सा है? अमाइड, सोडा अमाइड. उसमें से भी सोडा अमाइड जानते हो बेटा, NH2 नेगेटिव होता है, and these NH2 negative will take out the H positive to form the ammonia. Na plus will take out the Cl minus to form the NaCl, and we are getting again as a diene बेटा, इसे अलीन बोलते हैं. डबल बॉन्ड आगे पीछे लग गया ना, अलीन आ गया. फिर वाटर ऐड करो, मार्कोनिकॉफ रूल से आपको इनॉल आएगा, और फिर इनॉल से आप कहाँ पे पहुँच जाएंगे? कीटोन पे. बेटा दिस क्वेश्चन यू हैव टू सी है, यहाँ पर पूछ रहा है प्रेडिक्ट द करेक्ट इंटरमीडिएट एंड द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस. बेटा ये रहा रिएक्शन, वो आपको दिख रहा होगा. CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, एडिशन ऑफ वाटर. अब आप देखो बेटा यहाँ वाटर लिखा है, मतलब आपने कैसे भी इसमें वाटर ऐड किया हुआ है, वाटर ऐड किया हुआ है. H2SO4 मतलब एसिडिक मीडियम H+. बेटा HgSO4 मतलब इन प्रेजेंस ऑफ Hg+2. आपने अभी भी एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ Hg+2 किए थे ना. मतलब इसमें क्या होगा, आपको वाटर ऐड करना है एंड इट फॉलो द मार्कोनिकॉफ रूल. तो आपको इंटरमीडिएट क्या आएगा, जो भी आएगा वो A होगा. बेटा ये वाले A है और ये वाले A है, और फिर इंटरमीडिएट से आपको प्रोडक्ट B आएगा. बेटा ये वाले B है और ये वाले B है. तो देखो ऑप्शन 1 इंटरमीडिएट A प्रोडक्ट B, ऑप्शन 2 इंटरमीडिएट A प्रोडक्ट B, ऑप्शन 3 इंटरमीडिएट A प्रोडक्ट B, एंड ऑप्शन 4 इंटरमीडिएट A एंड प्रोडक्ट P. अब आप देखिए बेटा यहाँ पर 3 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, तो शैल वी राइट हियर CH3 देन C ट्रिपल बॉन्ड CH. देखो मैंने वही लिखा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH. बेटा एडिशन ऑफ वाटर है, मतलब फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, मतलब मार्कोनिकॉफ रूल है. मैं यहाँ से बॉन्ड तोड़ूंगा तो बेटा यहाँ पर H जोड़ना पड़ेगा, बिकॉज इस कार्बन इज हैविंग मोर हाइड्रोजन दैन दिस वन. तो अगर मैं H यहाँ जोड़ूँ तो OH यहाँ आएगा. तो देखो क्या आएगा बेटा, CH3C, ये OH डबल बॉन्ड, और ये आ गया CH2. बेटा ऐसा वाला इंटरमीडिएट आपको कहीं दिख रहा है? देखो
ये तो नहीं होगा, ये वाला एक हो सकता। हाँ बेटा देखो, CH3COH डबल बॉन्ड CH2, CH3COH डबल बॉन्ड CH2, और ये नहीं हो सकता और ये हो सकता। मतलब हमारा आंसर 2 और 4 के बीच में है। अब ये जो आपको इंटरमीडिएट आ गया है, और जानते हो ये क्या है बेटा? डबल बॉन्ड मतलब ENE, OH मतलब OL, इनॉल। तो सब जब जब इनॉल दिखे टॉटोमेरिज्म करा लो। कैसे बेटा? ये वाला H इस कार्बन पे, डबल बॉन्ड O पे आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, H गोज टू हियर, CH2 बिकम CH3। ये आ गया आपका प्रोडक्ट B, इंटरमीडिएट A। बेटा ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट तो नहीं हो सकता, ये इंटरमीडिएट है और ये प्रोडक्ट है, हैंस और आंसर शुड बी बेटा ऑप्शन 4 इज करेक्ट। बेटा जब भी Hg+2 आता है एडिशन ऑफ वाटर होगा, और वाटर भी क्या फॉलो करेगा? मार्कोनिकॉफ रूल्स इट फॉलोज, एंड वी आर गेटिंग द इनॉल। और जब इनॉल आएगा, इनॉल की टॉटोमेरिज्म करा के आपने कीटोन बना लेना है। ये रहा बेटा अल्काइन, एडिशन ऑफ वाटर, इंटरमीडिएट दिस वन इनॉल, एंड प्रोडक्ट इज एसीटोन, दैट इज 2-प्रोपैनोन और एसीटोन। और ये रहा उसका आंसर, राइट? ठीक है, लिख लो बेटा इसे। बेटा नया क्वेश्चन देखिए, इन द रिएक्शन विथ HCl, ये रहा HCl, एंड अल्कीन रिएक्ट्स इन अकॉर्डेंस विथ विच रूल? मार्कोनिकॉफ रूल। बेटा इट गिव्स द प्रोडक्ट 1-chloro-1-methyl cyclohexane। सी हियर बेटा ये रहा साइक्लोहेक्सेन, 1-chloro और 1-methyl, इट इज़ अ प्रोडक्ट पॉसिबल फ्रॉम विच अल्कीन? चलो अपन एक काम करेंगे बेटा, मैं ये वाली अल्कीन ले रहा हूँ, फर्स्ट वाली। दिस इज ए अल्कीन, दिस इज अ डबल बॉन्ड CH2, but I am going to add HCl. You know it follow the rule called as a what? Markovnikov rule. बेटा Markovnikov rule में positive part of the attacking reagent, that is H plus, it will attaches to that double bonded carbon which has more number of hydrogen. बेटा this carbon is having how many hydrogen? 0. It is having how many? 2. तो H will attack here, Cl will attack here. बेटा when H will attack here, CH2 become CH3, and this Cl will attack here, then I got the Cl. Yes, I am going to get this product from option A. चलो I'll try with option B also बेटा, B, option B I'll write. Double bond CH3, but I am going to add HCl. It also follow the Markovnikov rule. Positive part of the attacking reagent attaches itself to that double bonded carbon which has more number of hydrogen. Beta how many hydrogen it will have? 0. How many hydrogen it will have? 1. Beta one more H you add here, it becomes CH2. See beta it becomes CH2. यहाँ कुछ भी नहीं है ना, समझ जाओ CH2 है, और बगल वाले कार्बन पे Cl जुड़ गया, यहाँ Cl जुड़ गया, और ऑलरेडी यहाँ CH3 है, और यहाँ से भी HCl डालो तो आपको यही प्रोडक्ट आएगा। तो व्हाट इज दैट बेटा? दिस प्रोडक्ट इज पॉसिबल फ्रॉम बोथ A and B, सो आवर आंसर शुड बी बेटा C, A and B इज अ करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन था बेटा बेस्ड ऑन मार्कोनिकॉफ रूल। देख लीजिए एक बार, इन द रिएक्शन विथ HCl and alkene react in accordance with Markovnikov rule, it gives the product 1-chloro-1-methyl cyclohexane. The possible alkene is, so among all the four here, A and B are the two alkene which on reacting with HCl follow the Markovnikov rule, and we are getting the product called as a 1-chloro-1-methyl cyclohexane. बेटा ये क्वेश्चन YNE से आ रहा है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH मतलब अल्काइन है बेटा, ये होते हैं अल्काइन। रिएक्ट विद NaNH2 लिक्विड अमोनिया, एंड इन प्रेजेंस ऑफ दैट बेटा इट इज रिएक्टिंग विद द इथाइल ब्रोमाइड,
यहाँ से क्या होगा बेटा, यहाँ से H प्लस गया, बिकॉज ऑफ दिस लिक्विड अमोनिया यू विल टेक आउट द H प्लस, मतलब यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ये कब हुआ, व्हेन इट रिएक्ट विद NaNH2 एंड लिक्विड अमोनिया। अब नीचे देखो आपको क्या दिया है, इथाइल ब्रोमाइड, और जानते हो बेटा इथाइल ब्रोमाइड ऐसे लिखते हैं। अब उन्होंने सीधा लिखा, मैंने उल्टा लिखा। जब यहाँ से ब्रोमीन बाहर जाएगा बेटा, ब्रोमीन विल कम आउट एज ए Br माइनस, और इस कार्बन के सर पे क्या छोड़ देगा, पॉजिटिव। अब देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में रिएक्शन हो रही है, और इन दोनों में रिएक्शन जब होगा तो आपको प्रोडक्ट ये वाला X क्या मिलेगा, सोचो। पहले H, फिर बेटा C, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर C। बेटा ये C इस C से जुड़ रहा, फिर ये CH3 से जुड़ गया, मतलब आपको जो X आ रहा है वो ये है। बोलो इसका नाम क्या है, 1 2 3 4 1 ब्यूटाइन। भाई 1 ब्यूटाइन यहाँ पर भी है, 1 ब्यूटाइन यहाँ पर भी है, यहाँ पर 2। अपना आंसर A और B में है। अब फिर से NaNH2 लिक्विड अमोनिया डाला हुआ है। बेटा NaNH2 लिक्विड अमोनिया का काम क्या है, इट विल टेक आउट द H प्लस एंड इट विल क्रिएट द नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन हैविंग ए ट्रिपल बॉन्ड। और देखो सेकेंड स्टेप में वहाँ पर क्या लिखा है उसके नीचे, इथाइल ब्रोमाइड। और सर इथाइल ब्रोमाइड को तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, कैसे बेटा, Br बॉन्डेड विद CH2 बॉन्डेड विद CH3। और यहाँ पर भी क्या होगा, Br जाएगा एज ए Br माइनस, C पे क्या छोड़ देगा, पॉजिटिव चार्ज। बेटा ये वाला C पॉजिटिव इस C नेगेटिव से बॉन्डिंग करा ले तो देखो आपको कैसे दिखेगा, यू आर गोइंग टू गेट, पहले तो आएगा CH3 देन CH2, इट इज़ बॉन्डेड विद C नेगेटिव हैविंग ए ट्रिपल बॉन्ड C, देन बेटा CH2 एंड CH3। बोलो इसका नाम क्या है, राइट करो बेटा पूरा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, मतलब ये आ गया 3 6 कार्बन X और YNE। बेटा ये क्या था, 1 BUT YNE, X इज द 1 ब्यूटाइन एंड Y इज द 3 हेक्साइन। भाई 1 ब्यूटाइन 3 हेक्साइन, ये तो मुझे यहीं दिख रहा है, वेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, एक बार देख लो फिर से, YNE with NaNH2 liquid ammonia, it will take out acidic hydrogen, form the negative over the carbon. This negative will attack with this carbon, attach with the bromine to form the Y. Y is a what बेटा, ये रहा 1 ब्यूटाइन। फिर इसी 1 ब्यूटाइन में हमने NaNH2 लिक्विड अमोनिया डाल दिया, it will also take out the acidic hydrogen, create negative charge on the triple bonded compound, and this ethyl bromide में Br come out, C positive will attack with the C negative and we are getting a large alkyne. The name is a 3 hexane, and option B is correct option here. समझ में आ गया बेटा ये भी। बेटा which of the following is a correct order of acidity, ये जो लिखा है ना, it is a correct order of what बेटा, acidity। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ढूंढने के लिए आपको एक रूल सिखाता हूँ, सीख लो बेटा। रूल क्या है, अगर आपके पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन डबल बॉन्ड हो, सॉरी कार्बन डबल बॉन्ड हो और कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, बेटा जानते हो सिंगल बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडेशन होती है sp3, डबल बॉन्ड की हाइब्रिडेशन होती है कार्बन की sp2, ट्रिपल बॉन्ड वाले की होती है sp। मतलब इस sp वाले कार्बन की परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर होती है बेटा 50, ये वाले परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इज 33.33 और परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर हियर इट इज 25%। जितनी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर होगा वो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। बेटा उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा, उस एटम से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन उतना ज़्यादा एसिडिक होता है।
तो हाइड्रोजन अटैचेस टू इट इज ए एसिडिक हाइड्रोजन, और जिसके पास जितने ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होंगे उसकी एसिडिक नेचर उतनी ज़्यादा होगी। अब आ जाओ यहाँ पर, बेटा इन्होंने पूछा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज व्हाट। तो आपको एक बात बता दूँ मैं, सुनो, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, काम का ही नहीं है, छोड़ दो। ट्रिपल ट्रिपल चलेगा, ट्रिपल डबल भी चलेगा, ये नहीं। बेटा हम दोनों इसमें चेक करेंगे, बी एंड सी में चेक करेंगे। अब ये कार्बन आपका sp है, बेटा ये भी sp है, मतलब ये हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है। तो बोलो आपके पास कितने एसिडिक हाइड्रोजन आ गए? 2। और यहाँ पर ये एसिडिक कार्बन है, आई मीन sp हाइब्रिडाइज कार्बन, sp हाइब्रिडाइज, लेकिन इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन एक ही है, इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं। तो हाउ मेनी एसिडिक हाइड्रोजन इट हैव? 2। बेटा हियर हाउ मेनी? 1। यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन और ये sp3, और आप जानते हो बेटा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है दैन दी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो इसके हिसाब से मोर एसिडिक, लेस एसिडिक, फिर डिक्रीजेस एंड डिक्रीजेस, बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, राइट। यहाँ पर आइए sp हाइब्रिडाइज कार्बन हैविंग 2 एसिडिक हाइड्रोजन्स। बेटा यहाँ पर भी sp हाइब्रिडाइज कार्बन हैविंग 1 एसिडिक हाइड्रोजन, लेकिन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड कार्बन आ गया जो कि sp2 है, और sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन लेस एसिडिक होगा देन sp3। सो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑर्डर। आवर आंसर शुड बी व्हाट? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ द हाइड्रोजन अटैचेस टू द हाइड्रोकार्बन। YNE की एसिडिक नेचर ज़्यादा है, YNE की, बाद में ENE, और सबसे कम बेटा ANE। बना लो इसे। देख लो बेटा यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp3। कैसे मालूम sp है? ट्रिपल बॉन्ड अगर एक भी आए sp, एक डबल बॉन्ड भी आ जाए उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2, सारे सिंगल बॉन्ड कार्बन sp3। sp में परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर 50, sp2 में परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर 33, और sp3 में परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इज 25। जितनी ज़्यादा s परसेंटेज उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम, और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन उतने ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। बेटा प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट सी, जरा ध्यान से देखो, ये प्रोडक्ट सी पूछ रहा है। प्रोडक्ट सी ऑप्टेड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। बेटा ये YNE है और आपने HCl डालना है, इट गिव्स राइज टू बी, फिर HI डालना है, गिव्स C, और C कौन सा इसमें बताना है। बेटा HCl मतलब इट फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल। बेटा इट फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल, और मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है? पॉजिटिव पार्ट मतलब H+ अटैचेस टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो हाइड्रोजन यहाँ पर एक है, यहाँ कुछ भी नहीं है। बेटा H इससे जुड़ गया तो कैसे दिखेगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड, देखो H इससे जुड़ गया तो Cl इससे जुड़ गया। अब फिर बेटा एडिशन ऑफ HI, और ये भी आपकी अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, मतलब डबल बॉन्ड के आगे पीछे डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन होते हैं ना, उसे बोलते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब यहाँ पर क्या होगा? H+ ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट अटैचेस इटसेल्फ टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा ये वाला H+ इस कार्बन से जुड़ेगा, और ये वाला I इस क्लोरीन से जुड़ेगा, और ये बीच का डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा। एंड नाउ आयोडीन इज हियर एंड H इज हियर। अरे बेटा आयोडीन इज हियर एंड H इज हियर, ऐसा कोई ऑप्शन में हमें दिख रहा है? सेकंड कार्बन पे क्लोरीन एंड आयोडीन, यस। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द प्रोडक्ट सी ऑब्टेन इन द रिएक्शंस।
बेटा यहाँ भी देखिए, ये भी एक आल्कीन है, अनसिमेट्रिकल आल्कीन है। सर हमें कैसे मालूम कि अनसिमेट्रिकल आल्कीन है? बेटा जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पेन रखो और देखो राइट साइड में कितने कार्बन है, 1, लेफ्ट में कितने हैं, 1 2 3 4। तो जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पेन रख के देखो, अदर साइड में अनइक्वल कार्बन हाइड्रोजन आ जाए, दैट शुड बी कॉल्ड एज ए अनसिमेट्रिकल आल्कीन। और अनसिमेट्रिकल आल्कीन में जब भी HBr डालते हो या HCl डालते हो, इट ऑलवेज फॉलो द रूल गिवन बाय मार्कोनिक, कॉल्ड एज ए मार्कोनिकॉफ रूल। बेटा वो क्या बोलता है? पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएक्शन अटैचेस इटसेल्फ टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच इज हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब H इससे जुड़ेगा तो Br इससे जुड़ना चाहिए। तो एक काम करेंगे बेटा, H इससे जोड़ के देखेंगे क्या आएगा। देखो CH3 CH CH3 CH CH3, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। बेटा मार्कोनिकॉफ रूल में हमेशा एक कार्बोकेटायन बनता है और आपको दिख रहा है ये कौन से डिग्री का कार्बोकेटायन बन गया बेटा? ये बन गया सेकेंडरी। अगर आप इसे सेकेंडरी को टर्शरी में रीअरेंज करवा सकते हो तो करा के देखिए, बनता है तो बना लो, नहीं तो छोड़ दो। चलो बनता है कि नहीं बनता है देखेंगे बेटा कैसे। व्हाट आई विल डू, बेटा यहाँ से ये जो H दिख रहा है ना, ये वाला, इस H को यहाँ डाल दो और ये पॉजिटिव चार्ज को बाजू में ले लो। तो देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ और यहाँ का H चले गया यहाँ। अब बोलो कौन से डिग्री का कार्बोकेटायन आ गया? 3 डिग्री। और इस 3 डिग्री कार्बोकेटायन में अब आपका ये Br को अटैक करा लो तो आई थिंक आपको प्रोडक्ट कुछ ऐसे दिखेगा। सी बेटा प्रोडक्ट कुछ ऐसे दिखेगा, CH3 C देन CH3, बेटा यहाँ पर Br देन CH2 एंड देन CH3। ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है? यस सर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। मतलब जब भी आप मार्कोनिकॉफ रूल करवाते हो इसको याद रखना बेटा, पहले आप जब H जोड़ देते हो तो बाजू में कार्बोकेटायन आता है। अगर आप उससे लेस स्टेबल से मोर स्टेबल करवा सकते हो, रीअरेंज करवा सकते हो तो करा लीजिए। अगर 2 डिग्री का 2 डिग्री रहता है तो ऐसे ही रहने दो, अगर 2 डिग्री का 3 डिग्री बनता है तो बना लो और बाद में नेगेटिव चार्ज जो भी हो Cl माइनस Br माइनस अटैक करवा लो और आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। तो आंसर इज व्हाट बेटा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। बेटा यहाँ देखिए, आइडेंटिफाई Z इन द सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। ये भी अनसिमेट्रिकल आल्कीन है, HBr डाल रहे हो, लेकिन एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड HNU, बेटा ये होती है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट अटैचेस इटसेल्फ टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बेटा यहाँ रीअरेंजमेंट का काम ही नहीं है, सीधा H यहाँ जोड़ो, बगल में Br जोड़ो, तो CH3 CH2 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 Br, तो CH3 CH2 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 Br। ऑप्शन B is the correct answer for this reaction. It is called as a anti-Markovnikov rule। और anti-Markovnikov rule कब काम करेगा? एडिशन ऑफ HBr विथ peroxide। बेटा अगर मैं HCl लिखता ना, फॉर एग्जाम्पल मैं HCl लिखता और ये रखता, अब भी वो मार्कोनिकॉफ रूल ही फॉलो करता, लेकिन एडिशन ऑफ HBr विद H2O2 हो तो आपको एंटी मार्कोनिकॉफ आएगा। अभी देखो मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, सेम थिंग, CH3 है, CH2 है, CH डबल बॉन्ड CH2 है। बेटा इंस्टेड ऑफ HBr मैंने HCl डाल दिया और बाकी वही है, पेरोक्साइड होगा, HNU होगा। आपको लगेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होना चाहिए, नहीं बेटा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल HBr के साथ ही होता है, HCl के साथ नहीं। अभी मैं HCl जोड़ूँ ना, H यहाँ और Cl बगल में, आपको देखो ये आएगा CH3 देन CH2 और इस कार्बन में आ जाएगा Cl और यहाँ पर आ जाएगा बेटा CH3। बोला एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन वी आर एडिंग व्हाट बेटा? HBr with peroxide, right? The answer is option B is correct.
बेटा ये क्वेश्चन देखो, ये भी है ना आल्कीन है, साइक्लो आल्कीन है। और जब भी साइक्लो आल्कीन में आपको ऐसे रीजन जब भी दिखे, ध्यान से देखो, B2H6H2O2 OH-, बेटा इट विल फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। पहला तो पॉइंट ये है, B2H6 दिखे, H2O2 दिखे, OH- हुआ तो फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और साथ में इसमें आपको दिख नहीं रहा है बट एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होनी है। और आप जानते हो वाटर मॉलिक्यूल के दो पार्ट हैं, कौन से पार्ट? H+ एंड OH-। बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ में पॉजिटिव पार्ट विल अटैचेस टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बोलो इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 0। इसके पास कितने? 1। तो बेटा अपना H+ इस पे जुड़ गया तो OH इस पे जुड़ेगा। चलो H+ को यहाँ जोड़ो, यस सर जोड़ दिया, और OH को यहाँ जोड़ दो, जोड़ गया। देखो आपका आंसर ए नहीं आया। दिस इज कॉल्ड एज ए, द नेम ऑफ दिस मेथड कॉल्ड एज ए HBO मेथड। बेटा HBO का मतलब होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। और उसके रिएजेंट का नाम बेटा ये है डाइबोरेन B2H6 विथ H2O2 फॉलोड बाय OH-। इनडायरेक्टली ये बता रहा है कि आपको वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है एंड दैट टू बी इट शुड फॉलो विच रूल? एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। चलो देख लो बेटा इसे, ये भी आ गया समझ में। बेटा ये और एक क्वेश्चन है सेम फ्रॉम दी HBO मेथड से है। HBO मतलब वही हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखो बेटा ये रहा R CH डबल बॉन्ड CH2, इट रिएक्ट्स रेडिली विथ B2H6। तो देखो बेटा पहले तो B2H6 दे दिया एंड दी प्रोडक्ट ऑन ऑक्सीडेशन विथ अल्कलाइन H2O2। अभी भी आपने देखा H2O2 इन अल्कलाइन मीडियम। बेटा व्हाट डज इट इंडिकेट्स? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। बेटा एंटी मार्कोनिक में किसको ऐड करना है? वाटर। बेटा वाटर का H+ किस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा? कार्बन विच इज हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इससे कौन जुड़ेगा? H। तो इससे कौन जुड़ेगा? OH। चलो प्रोडक्ट बना के देखो भाई, CH बिकम CH2 एंड डी CH2 के साथ OH। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? यस सर। बेटा ऑप्शन डी इज द करेक्ट। इज इट क्लियर? बना। बेटा ये भी रिएक्शन देखो, रिएक्शन ऑफ CH3CH CH3CH डबल बॉन्ड CH2। बेटा इट रिएक्ट विथ HOCl, इसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड, रिएक्ट विथ HOCl। अब देखो ये अनसिमेट्रिकल आल्कीन और ये आपका एडिशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड। बेटा यहाँ पे बच्चों को डाउट क्या होता है, इसमें OH+ है या Cl+ है? तो मैं आपको सिखा दूँ, एक चीज़ सीख लो बेटा। ये है H के साथ में Cl, सॉरी ये है H के साथ में Cl और ये है H के साथ में OH। बेटा इतना तो हम सब जानते हैं HCl में H पॉजिटिव होता है तो Cl नेगेटिव होता है। और वाटर में भी बेटा आप जानते हो एक्चुअली H+ होता है, OH बिकम माइनस हो जाता है। तो इसे हम एक काम कर सकते हैं अभी बेटा, इसे हम ऐसा एक काम कर सकते हैं। व्हाट आई विल डू, यहाँ पे Cl ले लिया, यहाँ पे H एंड OH ले लिया। अब बोलो H और OH में H बिकम प्लस तो OH बिकम, बेटा अगर ये OH माइनस है तो ये Cl को प्लस करा लो, ये Cl को माइनस करा लो और देखो इन दोनों को थोड़ा अलग करो। अलग किए तो क्या आ गया? OHCl। बोलो OHCl में पॉजिटिव पार्ट कौन है? Cl। तो नेगेटिव पार्ट कौन सा है बेटा? OH। अब आपको यहाँ पर भी क्या फॉलो करनी है? द रूल सेम। विच रूल? मार्कोनिकॉफ रूल। बेटा मार्कोनिकॉफ रूल में विच पार्ट इज गोइंग टू अटैक? पॉजिटिव पार्ट इज गोइंग टू अटैक। वेयर? ऑन दी डबल बॉन्डेड कार्बन। बेटा उस डबल बॉन्डेड कार्बन से आपका Cl जुड़ेगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज़्यादा हो। तो इसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है
इससे कौन जुड़ेगा? Cl। तो इससे कौन जुड़ेगा? OH। बना के देखें, ये CH3 है, CH, इससे क्या जुड़ गया? OH। और इससे क्या जुड़ गया बेटा? Cl। बोलो इसका नाम क्या है? आई शुड राइट दिस कार्बन हैज़ ए नंबर 1, राइट बेटा? ये नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3। बोलो क्लोरीन प्रेजेंट ऑन विच कार्बन? फर्स्ट 1 क्लोरो। भाई ये भी 1 क्लोरो, ये भी 1 क्लोरो, ये काम की नहीं है। और सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप, सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप, व्हाट इज इट? 2 प्रोपेनॉल। आंसर शुड बी ऑप्शन सी। तो आपको समझ में आ गया ये बेटा? और एक क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द हाइपोक्लोरस एसिड। देखो बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऑन रिएक्टिंग विथ हाइपोक्लोरस एसिड। जानते हो हाइपोक्लोरस एसिड क्या है बेटा? HOCl। इसमें Cl क्या है? पॉजिटिव। तो OH क्या है? तो बेटा यहाँ पर मैं Cl जोड़ दूँ, यहाँ पर OH जोड़ दूँ, तो मुझे M आएगा। देखो ये CH2 है, ये CH2 है, इसके हिसाब से अगर मैं OH यहाँ जोड़ दूँ तो Cl यहाँ जोड़ूंगा। M इज़ ए मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल एक वैसा मुझे यहीं दिख रहा है आंसर डी। अब देखो R इज़ ए रिएजेंट। बेटा व्हाट इज़ ए रिएजेंट? NaHCO3 अगर मैं लेता हूँ तो NaHCO3 में Cl निकल जाएगा, एंड इन प्लेस ऑफ Cl आई विल गेट वन मोर OH। सो R शुड बी व्हाट बेटा? द R शुड बी सोडियम, NaH sodium bicarbonate, which will take out Cl and it will add OH, and this is the glycol I will get. But the name of this compound is what? Ethylene glycol. ये आपको इथिलीन ग्लाइकॉल मिलता है विद द हेल्प ऑफ दिस रिएजेंट। विच रिएजेंट? एक्वास NaCO3। और ये रहा बेटा आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। सही है ना? सबको समझ में आ गया? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच।